कर्नाटक में एक बार फिर एचडी कुमारस्वामी की सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। हालांकि सीएम कुमारस्वामी और इत्तेहादी जमात कांग्रेस ने किसी तरह के खतरे से इंकार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी पहले दिन से ही उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से पहली बार उन्हें नाकामी हाथ लगी थी वो सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत-ए-कार पूरा करेगी। वहीं दीगर लीडरान ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए इसे बीजेपी की नाकाम कोशिश करार दिया। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अपने सभी वुज़रा की मीटिंग बुलाई और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हालात में 224 मेंबरान वाली रियासती असेंबली में कांग्रेस और जेडीएस के कुल 116 अरकान असेंबली हैं, जबकि बीजेपी के पास 104 मेंबरान हैं। ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100-104 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರೇ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭದ್ರತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. BJP leaders are saying that this government is going to fall. They are fixing time and again they are fixing the muhurta, but to their unfortunate it is not happening. It will not happen. The government is stable. We are all stable. There is absolutely no problem with this government. We will definitely continue for 5 years. You know, some of our MLAs have gone out. We don't have to worry about. They would have gone for temple. They would have gone for holiday. They would, family outings. We don't know. And nobody has said that they are going to join BJP and then destabilize our government. और कांग्रेस एमएलए ನೋಡಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಾರೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಇದಾರೋ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಇದಾರೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಇದಾರಂತೂ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೂ ದಾಖಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं जा रहा. अभी 4-5 जन एमएलए जैसे कि रमेश झाड़केवाले जो मिनिस्टर थे उनको मिनिस्टर से निकाला गया है, वो थोड़ा नाराज है. नाराज होना साजा है. अभी एक मिनिस्टर थे, उनको मिनिस्टर निकालने के बाद साजा है. मगर यकीन रखो, कोई एक एमएलए भी कोई बीजेपी को नहीं जाएगा. नहीं, कामयाब सवाल ही नहीं पैदा होता है. कामयाब होने के लिए 18 चाहिए उनको. 3-4 जन में कामयाब नहीं होएगी वो, और 3 जन भी नहीं जाएंगे. कोई भी नहीं जाएगा. कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को कोई नहीं जाएगा. वो लोग बीजेपी वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं. मगर जिस दिन से गवर्नमेंट बनी उस दिन से येडियुरप्पा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं. हर आदमी रात में ख्वाब देखता है, बीजेपी वाले दिन में ख्वाब देख रहे हैं. ये गवर्नमेंट को कुछ होने वाला नहीं है. तो कर्नाटक में जारी सियासी बहरान के बीच साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा के दिल्ली पहुंचते ही रियासत का सियासी दर्जा हरारत तेज हो गया है. हालांकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के इल्जामात को खारिज कर रही है. येदियुरप्पा का कहना है कि सीएम कुमारस्वामी खुद उनके अरकान को तोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि उनके अरकान असेंबली कुमारस्वामी के काम से खुश नहीं है. वहीं जेडीएस ने कहा है कि अगर बीजेपी ने कोई गलत हरकत की तो उन्हें अपने कई अरकान से हाथ धोना पड़ सकता है. My dear friend, you people are very well known that Ramesh Jarkiwale, after resigned for the cabinet ministership, from the day one is not at all available to anybody. For that we are not responsible. For that Congress or JDS are responsible, number one. Number two, Kumaraswamy is telling repeatedly even today that BJP is trying his level best to get some MLAs from Congress and JDS. There is no truth at all. Because Kumaraswamy himself is trying his level best to contact our MLAs by offering ministership and also money. That's why 104 MLAs we are together here only. So unnecessarily
Kumaraswamy creating problem, and we are not all interested in forming the government at all, because they are having absolute majority, and we are 104. We are sitting in the opposition party. कि वो दो विधायकों को लेके सरकार बनने से पहले भी बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो रास्ते में से ही हाईजैक करके ले गए थे। तो ऐसे वही सेम विधायक अगर उनके संपर्क में हैं तो वो फिर मुंह खाएंगे, जैसा कि उन्होंने एक बार पहले मुंह खा चुके हैं। 6 विधायक मिसिंग की क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं है। कोई विधायक जो है, हमने कहा कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। अगर 6 विधायक इधर मिसिंग हैं तो बीजेपी के उससे दुगने विधायक जो है हमारे संपर्क में है। They should keep their house in order. If they are not able to keep them together, simply pinpointing at BJP, I don't think that it is fair on the part of any politician with whom their duties are not done properly. So they are trying to put some aspersions against the other party. Say BJP, we have decided we are not going to have any operations for the time being. And if the government falls, then we being the single largest party having 104 MLAs, we will try to form the government. That is our intention. DK Shivakumar has no business to comment about BJP because he is not able to keep them together. His house should be kept in order first, then he should shout at others. By making a political statement, certainly he will not gain anything. That is my opinion. So once again I tell to the Congress people, don't simply blame BJP by making a statement that BJP is going to have operations, BJP is going to have this Lotus operations and all that. The Congress party's allegation that BJP is trying to post their MLAs and 3 MLAs are incommunicado, it is for them to resolve those issues and manage their MLAs. For the last 7 months, it has become an habit for the Congress party and Kumaraswamy to accuse the BJP of horse trading in Karnataka to destabilize his government. If they cannot manage their own MLA, why blame the BJP for all their ills? It is very sad that today Parameshwar says all is well in Congress party. Kumaraswamy says that there is a problem in the Congress party and 3 MLAs are trying to cross over to the Bharatiya Janata Party. The left doesn't know what is right doing, right doesn't know what is left doing in Congress party. Under such circumstances, being a ruling party in Karnataka, if they cannot manage their MLAs, it is their weakness and it is their leadership failure. और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। शायद कर्नाटक में एक बार फिर से जेडीएस कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार खतरे में नजर आ रही है और कांग्रेस और जेडीएस दोनों के ही इल्जामात है कि बीजेपी उनके अराकीन असेंबलीज को खरीद फरोख्त करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन का इजलास हुआ था जिसमें जो नाराज वज़रा हैं, खास करके जो नाराज अरकान असेंबली हैं, वो उसमें कुछ लोगों को हटाया गया था और कुछ लोगों को जो उम्मीद थी उसकी उम्मीद के मुताबिक उन्हें ना चेयरमैनशिप मिली है और ना ही वजारत में जगह मिली। इस वजह से काफी लोग नाराज हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराजगी जाहिर करने के लिए बीजेपी से सीधा संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके रमेश जारकीहोली हो या प्रकाश हुक्केरी के फर्जन जो हैं, जो बेलगाम के रुकन असेंबली हैं, उन्होंने जो है सीधे फोन के जरिए जो है बताया कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है 2 या 3 लोग, ज्यादातर जो है 3 अरकान असेंबली बीजेपी के सीधे संपर्क में है, सीधे ताल्लुकात में है, लेकिन बाकिया जो लोग नाराज हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ होने का दावा नहीं कर रहे हैं अब तक। ये जो सरकार गिराने की जो कोशिश है, ये बीजेपी तकरीबन इससे पहले भी 5 या 6 मरतबा कर चुकी है। ये 7वीं मरतबा बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से सरकार को गिराया जाए और नई सरकार, बीजेपी की सरकार बनाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के अरकान असेंबली जो बीजेपी में नाराज हैं वो कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे हालात में बीजेपी के लिए भी जो है इस हुकूमत को गिराना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। आसान तो हरगिज नहीं है शाहिद काजी, और इस नंबर गेम को हम समझने की कोशिश करें आपके जरिए तो कैसे समझा जाएगा शाहिद गाजी?
तो देखिए, अगर इस वक्त अगर सरकार गिराना है तो बीजेपी को कम से कम 18 अरकान असेंबली की जरूरत है, क्योंकि बाई इलेक्शन और दीगर इलेक्शनों में जो तादाद हुई है वो कांग्रेस के हक में काफी इलेक्शन आए हैं। कांग्रेस और जेडीएस ने तकरीबन 3-4 अरकान असेंबली को इजाफा किया है बाई इलेक्शनों में। तो इस वजह से तकरीबन 18 अगर अरकान असेंबली बीजेपी का साथ देते हैं तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही है। 2 या 3 लोगों की नाराजगी है, खास करके आनंद सिंह का जो ग्रुप है वो, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे इलेक्शन के बाद में। तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं इन्हें कोई वजारत भी नहीं दी गई है और ना ही कोई चेयरमैनशिप इन्हें मिली है। तो इस वजह से वो लोग नाराज हैं और वो बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 या 3 लोगों के इस तरह से पार्टी छोड़ने से जो है सरकार गिरने की कोई खास इम्कान तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पे कम से कम 15-20 लोग अगर एक साथ जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सरकार इसमें गिर जाए। शाहिद काजी, साबिक वजीर आला येदियुरप्पा भी दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद भी सियासी पारा ऊपर नीचे होने लगा है कर्नाटक का, तो उनके दिल्ली पहुंचने को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए येदियुरप्पा के पास जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरीके से कर्नाटक में सरकार बनाने में कामयाब हो। इससे पहले जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उससे पहले सबसे पहले जो है येदियुरप्पा ने जो है सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन नंबर पेश करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से सरकार बनाते रह गए। उसके बाद से लगातार जो है येदियुरप्पा कोशिश करेंगे किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से जो है सरकार बनाने में कामयाब हो। लेकिन अब तक येदियुरप्पा के साथ देखा जाए तो खुद बीजेपी के अरकान असेंबली साथ नहीं दे रहे हैं। जो बीजेपी के जो सीनियर लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं येदियुरप्पा को वजीर आला बनाना नहीं चाहते हैं। अंदरूनी इख्तलाफ की वजह से भी जो है ऑपरेशन कमल कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आता है। तकरीबन 5 या 6 मरतबा जो है इससे पहले कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये 7वीं मरतबा कोशिश हो रही है। हाँ। देखने वाली बात होगी कि कहां तक इसमें कामयाबी मिलती है येदियुरप्पा को। बिल्कुल, या फिर ये कोशिश भी पहले की तरह नाकाम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। केरल के सबरीमाला मंदिर में ख्वातीन के दाखिले पर जारी तनाजे के बीच एक नए इशू को हवा मिलने लगी है। केरला हाईकोर्ट की इजाजत के बाद अगस्त कोर्डम चोटी की तारीख बदलने की शुरुआत हो चुकी है। इस पहाड़ी पर रोक के बावजूद डिफेंस लेडी धान्या सनल ने वहां जाने के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत कर दी है, जिसे बाकायदा अफसरान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वाज़ेह रहे कि पहाड़ी पर ब्रह्मचारी अगस्त्या ऋषि की समाधि होने से यहां भी औरतों के जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन पिछले साल रियासती हाईकोर्ट ने चोटी पर जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि चोटी पर रवाना हुई धान्या सनल का कहना है कि उनका मकसद किसी के अकीदे को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि वो वहां सिर्फ ट्रैकिंग के मकसद से जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि अगस्त कोर्डम चोटी की ऊंचाई 1868 मीटर है। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए 4700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बताया जाता है कि धान्या को अपना सफर मुकम्मल करने में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लगेगा। I thought of going for the trekking, and I registered normally in the same way others are doing it. So I got the registration on the day 1 itself, because my leave schedules are arranged as per that I booked the ticket. So no other woman has come forward for this particular day. So fortunately or unfortunately, I become the single woman climbing today. I don't want to hurt their sentiments. I'm not planning to enter any area which is prohibited by them. I'm planning to go through the area which is directed by the forest officials. So I expect guards will be following us, or they'll be guiding us. So I'll be going through the channels which they will be guiding us. I'm not going to deviate from any pathway, and I'm just looking forward to finish it with in the stipulated time. Because of that toughness of the terrain and other safety measures, we are not in a position to arrange trekking to ladies. We have allowed because of the High Court order. The government has also took stand that we are ready to give permission to ladies to Asyaruda. Most probably from January 14th to Shivratri Day. That is on this year 4th of January. 14th January to 4th of March. That is on Shivratri Day. Ends on Shivratri Day. We are allowing 100 people per day for trekking. Total 47 days.
4,700 people. From base camp is from Bonakat Picket Station to base camp. Base camp is at Adrimala. That is 13 kilometers. 13 kilometers. From base camp to Asayarvadam, 6.5 kilometers. Total around 20 kilometers. And what about the stay? Stay is at base camp. Base camp is Adrimala. We are providing present facility for ladies also. We have two camp sheds, temporary camp sheds are there. In that camp shed, we have partitioned one portion to ladies also. चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। अल कलम उर्दू सोसाइटी की जानिब से अदबी सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद हुआ है। हैदराबाद में मुनक्किद इस तकरीब को असरे हाजिर में उर्दू शायरी का नाम दिया गया था। तकरीब में बड़ी तादाद में शोरा और उर्दू दाने शिरकत की। इस मौके पर मुशायरों में उर्दू के गिर रहे वकार पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया। तकरीब का मकसद मुल्क के तमाम उर्दू तबके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना भी था, ताकि एक साथ बैठकर उर्दू के फरोग के लिए गौर व फिक्र किया जा सके। मैं अब 85 बरस का हो गया हूँ और मैंने जोश मलियाबादी और फिराक गौरखपुरी, जिगर मुरादाबादी सबकी सोबतों में शरीक होने का मुझे मौका मिला। वो मुशायरे वो बिल्कुल अलग होते थे, बल्कि आज से 20-25 साल पहले भी खुद हैदराबाद में बड़े अच्छे मुशायरे हुआ करते थे। मगर अब मुशायरे की रिवायत जो है वो रूबज़वाल है और अब जाके मुशायरे में कुछ खुशी का एहसास नहीं होता। चुनाचे मैं वैसे भी मैं नसर का आदमी हूँ, मगर मुशायरों में पहले जाया करता था, अब जाने का मुझे मौका नहीं मिलता और जी भी नहीं चाहता, इसलिए कि मेयार इतना गिर गया है आज के मुशायरों का कि समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। आज इसका ये जवाब, अभी हाल तक भी जब मजरूह सुल्तानपुरी थे, कैफी आजमी थे, साहिल लुधियानवी थे, कौन नहीं था समझो, मगर अब जो इन्होंने एक मौजू जो तलाश किया वो बड़ा अहम मौजू है। वो ये कि इसके ज़वाल के असबाब का पता चला कि आप असबाब को तो दूर नहीं कर सकते, मगर सूरत हाल का अंदाज़ा होना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आगा सरोज को, ताहिर आबिदी को कि उन्होंने इस मौजू पे एक सेमिनार का के इनेकाद का फैसला किया। तमिलनाडु में 20 माहीगीरों को श्रीलंका नेवी ने हिरासत में ले लिया है। मछली मारने की गरज से नाव लेकर समंदर में जा रहे माहीगीरों को हिरासत में लिया गया। रामेश्वरम समेत करीब 3 इलाकों में अपनी कस्टडी में लेने के लिए श्रीलंका इंतजामिया ने अपनी सरहद पार करने का इल्जाम लगाया। हालांकि ऐसे वाकयात आए दिन देखने को मिलते हैं, जिससे रियासती माहीगीर काफी परेशान रहते हैं। बार बार हो रहे वाकयात पर दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन माहीगीरों के सामने पेश होने वाली ये परेशानी अभी भी दूर नहीं हो पाई है। और मकर संक्रांति से पहले आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के सीनियर सिटीजन्स को दिए जा रही पेंशन को दोगुना करते हुए इसे 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इजाफी पेंशन पाने वालों को इसी जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि रियासत में आम इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। ऐसे में बुजुर्गों को लुभाने वाला ये बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिससे रियासती हुकूमत ने मकर संक्रांति के खास मौके पर देने का ऐलान कर गरीब बुजुर्गों की खुशियों में इजाफा कर दिया है। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी काइट और स्वीट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मकर संक्रांति को हिंदुस्तान का अहम त्योहार बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की और इस खास मौके पर तकरीब में दर्जनों ममालिक के काइट और स्वीट से ताल्लुक रखने वाले लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मौके पर लोगों की सहूलियात के लिए हुकूमत ने बेहतर इंतजाम किए हैं। बैरून मुल्क से आए लोगों ने जहां हिंदुस्तानी तहजीब की जमकर तारीफ की, वहीं यहां के भाईचारे को दुनिया की सबसे बेहतरीन तस्वीर बताया। लगातार 4 साल से होने वाली इस तकरीब में तरह तरह की पतंगों की नुमाइश लगाई गई। वहीं एक जगह पर हिंदुस्तान भर की मिठाइयों की झलकियां लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। इस मौके पर पतंगबाजी के जश्न में डूबे लाखों लोगों ने मकर संक्रांति का जश्न जमकर मनाया। For the country that has been the practice, Makara Sankranti is a very auspicious day
According to Hindu customs, throughout India, people celebrate this festival with great enthusiasm and fervor. Festival is celebrated in different names in different parts of our country. In South India, it's called as Pongal Sankranti. In Punjab and Haryana, it's called as Lohri. In Assam, it is called as Bihu. In Bihar, it's called as Khichdi Festival. In Kerala, it is called as Vishu. This important festival holds great historical and religious significance. It is a festival of sun god, who is often regarded as a symbol of divinity and wisdom. Makara Sankranti or Uttarayana is the day when the sun begins its northbound journey, marking the beginning of the decline of winter. Bismillah Rahman Rahim. The experience is very good here. Especially right now we see that it's a kite festival, is a universal festival. Even in Iran, we celebrate the kite festival, and very happy to see here that there is no religious. All the people are believe in humanities, and they are celebrate this festival. Right now there is a sweet festival, food festival, dance festival, and kite festival. So this is a good combination, and like a mini India you can see right now. If you add the more about the kite, it's international. So I'm very happy here, and I'm from the Iranian consulate. Myself, Khorasani, public diplomacy officer. I'm from America, North Carolina, and I think this is beautiful. It wasn't anything I could ever expect. So more beautiful than I can imagine. I think this is a wonderful festival. It's absolutely great. The sweets were delicious, and I can't wait to come back. So far, the wind has been okay. The public, a lot of people in the crowd. It's good. It's good. Good experience. My first time to Hyderabad. Very good. I am from Colombia. And you came here for celebrating kite festival or flying the kite festival? This is the first time here in Hyderabad. So how do you feel participating? My feeling is very nice. The place is good. The people are very friendly. तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये फोर्थ टाइम टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर मिस्टर वेंकटेशम के नेतृत्व में जो काइट एंड स्वीट फेस्टिवल बनाया गया, उसके लिए मैं पूरे वर्ल्ड से जितने काइट ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर आए, थाईलैंड, नेपाल एंड USA, इधर से जो काइट फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, उसके साथ साथ हमारे BC बैकवर्ड क्लासेस के स्कूल के बच्चे भी पूरे जितने में भारत में जितने राष्ट्र है उनका अपना कास्ट्यूम से उनका ही डांस, उनका कास्ट्यूम से उनका ही डांस, जैसा नागालैंड, नीदरलैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसा उनका ही ड्रेस में जो है उन्हें आज जो यहाँ पर डांस प्रोजेक्शन किया। और ये काइट फेस्टिवल के साथ साथ हमारे स्वीट फेस्टिवल भी है। ये स्वीट फेस्टिवल ऐसा है, जितने भी हैदराबाद स्टेट में इंटरनेशनल सिटी, हैदराबाद आज जो है इंटरनेशनल सिटी में एक बन गया। ये इंटरनेशनल सिटी में जितने भी स्वीट यहाँ पर इंटरनेशनल में मिलता, अमेरिका में जो स्वीट मिलता हमारे स्टॉल में मिलता, गुजरात जो स्वीट मिलता हमारे पास मिलता, इतना मधुर नगरी बनाया। We are very happy that today the International Kite and Sweet Festival is being organized in Hyderabad with such a fanfare, with lots of people around 20 country representatives, in around 45 of them came from 20 countries, making huge kites, and they're displaying their kite power. And 100 kite flying clubs within the country also came. They are here, and the other side there are 20 countries. They are displaying their sweet products, and also about 25 states are also producing their sweets which they made in their homes, and they are displaying and also selling in their traditional costume. And we have cultural festival here where the entire discipline of their cultural side we will be displaying here. For each state will be having their culture production and then performance here. Last year when we brought the kite festival from the Aga Khan Academy to here, we were not sure how many people would attend. So learning that experience from last year, this year we made foolproof arrangements. Now we are expecting 3 to 4 lakh people attending every day throughout the day, morning to evening. So
all the arrangements are in place to take care of about 5 lakh people visiting per day. So the arrangements of that scale are made, and happy Sankranti for everybody. They can come and enjoy, the entire family, they can come and enjoy and go. और हिंदुस्तानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपना गोल्डन जुबली मना रही है। तश्कील के 50 साल मुकम्मल होने पर विशाखापट्टनम में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों ने कई सकाफती प्रोग्राम का मुजाहिरा किया। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि मुल्क के सनअतकारों के लिए हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे सरकार के अखराजात को कम से कम नुकसान पहुंचता है। तकरीब में बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की और जाबाजों के हौसले को सहारा। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।